Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. Today we will discuss few important questions from the chapter Dynamic Population और Population Dynamics. ये चैप्टर से आज हम लोग कुछ important क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. We have already discussed about the theoretical part of this or the explanation part of this chapter on the two videos. You can check there from the description box or from the I links button. You can check this. तो चलिए हम लोग आज ये जो क्वेश्चंस है इसको डिस्कस करते हैं. These are the few question that are important according to my point of view. I'm not talking about that these are the main important question. All these questions are important according to my aspect. Okay, so let's see what is the answer of this question. The first question is what is population dynamics? Population dynamics क्या है? Actually, so students आंसर स्टार्ट करने के पहले तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग अपना कॉपी एंड पेन अपने पास रखो. You can note down the answers. So what is population dynamic? This is the first question. Population dynamic actually it is a part of science. Okay, it is a part of science that deals with the changing that has taken place in a particular region. ये जो population dynamic है ये क्या है? Dynamic means continuously changing. I have already explained. So population dynamics means it is a branch of science that deals or that focuses on the changes taking place in a particular region and their effect on population. This is called population dynamic. Okay. Next question, what is population density? Population density means what is population density? It is the number of people living per unit area. Number of people, that means total number of people in an area divided by the area. Okay, so this is the formula population density, and at first you have to write the definition, then you will write the formula, not in short format. मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो यूज़ करोगे. नेक्स्ट वन इज राइट डिफरेंस बिटवीन एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. एमिग्रेशन इमिग्रेशन इसमें डिफरेंस क्या है? सो एमिग्रेशन मीन्स यू कैन राइट दिस बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ चार्ट. हम लोग ऐसे करके चार्ट करके यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग एमिग्रेशन लिखें और हम लोग यहाँ पर इमाइग्रेशन लिख सकते हैं. डोंट राइट इन शॉर्ट फॉर्मेट, यू विल राइट इन फुल फॉर्मेट आंसर. एमिग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम one particular region to another particular region. This is immigration. Immigration means coming of people or joining of people from one particular region to another particular region. This will be point number 1. And point number 2 क्या हो सकता है? Point number 2 होगा immigration increases immigration decreases the total number of population in a particular region. कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, कम होता है एमिग्रेशन के द्वारा. एंड इमिग्रेशन it increases the total number of population in a particular region or a particular country. Okay, so you can write this kind of two difference for immigration and immigration. Next, write the name of some sparsely populated region. Sparsely populated region के हम लोग कुछ example लिख सकते हैं. क्या example लिख सकते हैं? We can write desert region. Okay, we can write desert. We can write polar region also. We can also write equatorial region. Okay, you will add region. सबके पीछे हम लोग रीजन को ऐड करेंगे. मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रही हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? कोई भी प्लेस में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसका फैक्टर्स क्या हो सकता है? ये देखो, ये दो पार्ट से ये क्वेश्चन हो सकता है. इट मे कम फॉर 2 मार्क्स और 5 मार्क्स. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो देन यू विल राइट ओनली द नेम.
मेरी जो वीडियो है पार्ट 1 पॉपुलेशन डायनामिक का जो पार्ट 1 वीडियो है वहाँ पर देखोगे मैं एक चार्ट फॉर्मेट में उसका दिखाई हूँ जो पॉपुलेशन फिजिकल फैक्टर एंड मैन मेड फैक्टर्स, वो जहाँ पर चार्ट यूज़ किया गया है वो चार्ट अगर तुम लोग लिख देते हो 2 मार्क्स के लिए दैट इज़ एनफ. But if this question will come in 5 marks, you have to explain this all the points. In short, you have to explain this controlling factors of population. At first, you will write physical factors and you will write their names, and within 2 or 1 line, if it is possible, you will try to explain this. Main important point you have to focus on this, such as relief, climate. These are the main important factors, so you have to focus on these major factors, and the less important factor you can write in very brief. राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ अंडर पॉपुलेशन. अगर कोई एडवांटेज अंडर पॉपुलेशन हो, नॉट ओवर पॉपुलेशन. अंडर पॉपुलेशन का मीनिंग कहता है व्हेन अंडर पॉपुलेशन मीन्स व्हेन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन इज लेस दैन ऑप्टिमम population or resource available on that particular region. This will be called underpopulation. So there may be so many advantages of underpopulation. Underpopulation के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 एडवांटेज ही डिस्कस करेंगे. 2 एडवांटेजेस इट कैन बी एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी, हम लोग लिख सकते हैं, और एडिक्वेट भी लिख सकते हैं. एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैं और नहीं लिख रही हूँ. अपॉर्चुनिटी यू कैन राइट इट्स एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी. एंड नंबर 2 इट कैन बी दैट लो लेवल ऑफ पॉल्यूशन, यू कैन राइट दिस, ठीक है, लो लेवल ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि पीपल ही नहीं है तो पॉल्यूशन कहाँ पर होगा, लो लेवल ऑफ पॉल्यूशन. सो दिस कैन बी 2 पार्ट और 2 टाइप्स ऑफ एडवांटेज ऑफ इम्पैक्ट, और यू कैन राइट ऑल्सो एट इम्पैक्ट. इम्पैक्ट ये टर्म से भी हो सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है. अगर इम्पैक्ट बोले तो तुम्हें यू हैव टू राइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है. अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं हो, ओनली अगर क्वेश्चन में इम्पैक्ट हो, सो यू हैव टू राइट बोथ द इम्पैक्ट्स. बट अगर ये एडवांटेज स्पेसिफिकली बोला जा रहा है देन यू विल राइट ओनली एडवांटेजेस. व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन? ऑप्टिमम पॉपुलेशन बार बार मैं बोल रही हूँ टर्म, बट ये पॉपुलेशन क्या है? व्हेन ऑप्टिमम पॉपुलेशन मीन्स व्हेन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज एडिक्वेट विद द अवेलेबल resources, then it will be called optimum population for a particular region. Okay, अगर कोई रीजन में जितने सारे अवेलेबल रिसोर्स है उसमें से पैरिटी रख के सेम क्वांटिटी का अगर पॉपुलेशन हो तो जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्स रेशियो और डिफाइन सेक्स रेशियो. Sex ratio means it is a ratio, or it is the ratio between male population and female population in the total population or in respect of total population. Okay, I am repeating again. Sex ratio means the ratio between male and female population in the total population is called sex ratio. Okay, टोटल पॉपुलेशन अगर सपोज टोटल पॉपुलेशन 100 है, ठीक है. अगर टोटल 100 हो तो यहाँ पर सपोज मेल पॉपुलेशन है 60 एंड फीमेल पॉपुलेशन अगर है 40, तो रेशियो क्या होगा, यू विल कट 0 0 देन 3:2, ठीक है. टोटल पॉपुलेशन के ऊपर बेस करके ही हम लोग जो देखो मेल और फीमेल पॉपुलेशन को रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यही है सेक्स रेशियो. Next question is what is natural growth of population? Try to understand the meaning of the question. The question is not what is population growth. ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है. ऑल टाइम जब क्वेश्चन देखोगे उसका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे पहले. व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. सो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेचुरल ग्रोथ रेट, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे हम लोग देन वी विल राइट बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, देन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन विद इन फर्स्ट ब्रैकेट.
But here you are asking to write the natural growth of population, then you will write natural growth of population means the difference between birth rate and death rate. Next one is define fertility. The question fertility and birth rate both are almost same question है. So birth rate क्या है? Birth rate means the number of live birth per thousand of person or per thousand of people in a particular area, particular year. और एक बार बोल रही हूँ, fertility का मतलब क्या है? What is fertility? Fertility means number of live birth. ठीक है, live birth not still birth, number of live birth, okay, per thousand of person, 1000 person, ठीक है. एंड ये 1000 पर्सन हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? 1000 पर्सन इन अ पर्टिकुलर ईयर. एवरी ईयर ये चेंज होता है. सो बर्थ रेट इन अ पर्टिकुलर ईयर में सपोज 2011 जो है 2020 में वो नहीं होगा बर्थ रेट. सो पर्टिकुलर ईयर वाइज ये बर्थ रेट चेंज होता है. एंड ऑल टाइम इसे हम लोग ये यूनिट में हम लोग देखते हैं 1000 पार्ट 1000 में इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. सो फर्टिलिटी इज ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन विथ बर्थ रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेट ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे. इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब हम लोग मनाते हैं? इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड इन और डिक्लेयर्ड ऑन 8 सितंबर. ट्राई टू रिमाइंड द डेट. 8 सितंबर, ठीक है. हु डिक्लेयर्ड दिस डेट? यूनेस्को. दिस डेट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, ठीक है. यूनेस्को के द्वारा 1965 में ये डेट को डिक्लेयर किया गया था एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे. नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट टू इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन अ रीजन इज मोर देन द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, then it will be called overpopulation. You can write here example like China and India. Okay, these are the two countries that are suffered. Still now these countries are suffering with a problem of overpopulation. यहाँ पर overpopulation के problem से आज भी इंडिया एंड चाइना ये जो दो कंट्री है ये प्रॉब्लमेटिक है. ये जो प्रॉब्लम है मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर. So I hope all of you have cleared the concept all about this question. There are 12 questions. 12 क्वेश्चन यहाँ पर है. अगर कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछोगे द कमेंट सेक्शन. वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. एंड और क्या, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू एवरीवन.